Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the questions of engineering mathematics which has been asked in the DA branch. Let's have a discussion as all these questions are memory based questions only. So sorry, whatever the data till now I received, I am making here the solution. Okay, once the response sheet will be there, then we will share with the language as well as the data of the questions. Let's check it out here, the solutions. So here I am having first of all the very first question, which is a simple question. It's talking about find the value of summation of I equals to 0 to infinity, j equals to 1 to infinity, 2 power minus I or 3 power minus j. What we can do, we can expand any one of the series, किसी भी एक series को expand कर दो. तो let us assume I will go here with the expansion of this j. ठीक है, अगर हम j का एक्सपांशन करते हैं विच इज 1 टू इंफिनिटी 3 पावर माइनस j सॉरी हाँ and I will go here with the expansion I equals to 0 to infinity 2 power minus I. यहाँ से expansion में बन जाएगा 3 power minus 1, 3 power minus 2, 3 power minus 3 and so on. थोड़ा और अच्छे से इसका expansion कर दिया जाए, so it should become I equals to 0 to infinity 2 power minus I. This is nothing but 1 by 3, 1 by 3 square, 1 by 3 cube and so on. It will be continue. Can we see ये nothing but ये क्या है? This is nothing but the infinite GP. अगर ये infinite GP है बेटा, तो sum of the infinite GP होता है a upon 1 minus r. A is your first term. तो here we can say that a is nothing but 1 by 3 और r इसके पास a2 by a1. तो r is nothing but here you can write down a is 1 by 3 as well. R is also 1 by 3. When we will go here with this sum of infinite terms of GP, तो अगर आप यहाँ sum of infinite terms of GP पे जाओगे तो this is 1 by 3, 1 minus 1 by 3. You are getting 1 by 3 multiply with the 3 by 2. 3 से 3 cancel. We are getting here the result 1 by 2. तो इस पूरे सीरीज एक्सपांशन की जगह 1 by 2 रख सकती हो. ठीक है, तो here it should become summation I equals to 0 to infinity 2 power minus I और यहाँ हो गया 1 by 2. We can cross check. Yes, it is clear. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखिए, 1 by 2 बाहर ले लो. अब यहाँ एक्सपांशन लगाओ तो 2 पावर माइनस 0, 2 पावर माइनस 1 एंड सो ऑन. इट विल बी कंटिन्यू. ये भी क्या बन जाएगा? इट विल अगेन इनफाइनाइट जीपी. अभी लग नहीं रहा है बट इफ आई विल राइट डाउन इट हियर इन अ सिंपल मैनर तो ये दिखाई देगा आपको 1 by 2, 1 by 2 क्यूब, सॉरी 1 by 2 स्क्वायर. ठीक है, एंड सो ऑन इट विल बी देयर. सो हियर इट विल बी योर इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 by 2 है. सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज 1 upon 1 minus 1 by 2 जो कि आपको देगा 2 ओनली. When you will put here the value, this is 1 by 2 into 2. बेटा 2 से 2 cancel out. We are getting here the result as in 1. और लकीली ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? ये बात कर रहा है एनईटी की. इफ इट इज नॉट एनईटी तो ऑप्शंस होंगे, लेकिन एनईटी की बात कर रहा था और क्वेश्चन ने कहा था क्या कि अप टू द इंटीजर, मतलब इंटीजर की फॉर्म में इसका आंसर बताओ. तो वी कैन कंक्लूड द आंसर विल बी 1 ओनली. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. बिल्कुल आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन. चलिए सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट हियर दैट the next question which is talking about the exponential distribution. So x is the exponentially distributed random variable. ठीक है, और x is your exponential lambda when lambda is greater than 0. Probability of x greater than lambda is 0.35. तो बताओ probability when x is greater than to 10 given that x is greater than 5. ठीक है, तो देखो वैसे हम ना इसको सिंपल कंडीशनल का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं. Here we can solve this question simply using the conditional. मतलब कंडीशनल में मैम क्या आता है? कंडीशनल में आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन. डू यू रिमेंबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना. सो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब x ग्रेटर देन टू 5. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन. जो वैल्यू x से भी बड़ी हो, मतलब 10 से बड़ी हो और 5 से भी बड़ी हो, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू 10 से भी बड़ी होगी ही होगी. तो इट शुड बी द इंटरसेक्शन शुड बी x ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 5. ठीक है, वी नो वेरी वेल यहाँ हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है. तो व्हेन यू आर हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x ग्रेटर देन x के लिए अगर लगाते हो तो e पावर माइनस लैम्डा x का फॉर्मूला हमारा होता है बेटा. वी कैन यूज इट हियर. ठीक है, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस 10 लैम्डा और ये बन जाएगा e पावर माइनस 5 लैम्डा. इट इज गिविंग यू e पावर माइनस 5 लैम्डा. अब यहाँ देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया है, it is given to you in the question itself. This probability when x is greater than 5 is nothing but e power minus 5 lambda only ना. और इस 5 lambda की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है जो कि 0.35 है. So without going any further directly you can write down the result is nothing but 0.35. ठीक है,
तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे इसका आंसर 0.35 है यूजिंग द सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है मैट्रिक्स में अलजेब्रा से। So here we are having a question m equals to cos theta minus sin theta cos theta. I hope you guys remember this is a special matrix जो orthogonal है and we know very well orthogonal के बाद if the determinant of any orthogonal matrix is always equals to 1 we used to say it as a rotational matrix. तो ये और कुछ भी नहीं है रोटेशनल मैट्रिक्स है। इसके बारे में हमने क्लास में भी पढ़ा था और इसके बारे में हमने यहाँ यूट्यूब पे भी डिस्कस किया है, कुछ स्पेशल केसेस भी इसके डिस्कस किए थे। तो हियर I2 equals to 1001 where theta equals to 2 pi by 5 then find out the value of m power 2026। देखो बहुत अच्छा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम अच्छे से जानते हैं जो हमने यहाँ यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था कि whenever we are having a rotational matrix, मान लीजिए आपके पास कोई भी रोटेशनल मैट्रिक्स है और वहां आप m पावर k लिख रहे हो या k की जगह n p कुछ भी जो अच्छा लगे आप उस सॉरी जो अच्छा लगे आप उस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग हियर m पावर k अगर मैंने लिखा या फिर मैं कहूं आपसे कि यार मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा m जो कि क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा है एंड इफ आई एम गोइंग हियर फॉर द पावर p k कुछ भी जो आपको निकालना है, मान लीजिए मैंने कहा m पावर p निकालते हैं तो इट शुड बिकम cos ऑफ p थीटा माइनस sin ऑफ p थीटा, ठीक है, sin ऑफ p थीटा और cos ऑफ p थीटा, है ना। तो जो पावर आप लगाओगे उसी के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रोटेशनल मैट्रिक्स जो हमने यहाँ इस यूट्यूब पे भी पढ़ा है, ठीक है। तो मैम यहाँ पे अगर मेरे पास आ रहा है m पावर 2026 की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो कैन आई ब्रेक इट? यस यू कैन ब्रेक इट। m पावर 2026 की बात कर रहा है, ऑल्दो यू कैन राइट डाउन इट डायरेक्टली। आप क्या लिख सकते हो मैम? इट शुड बी नथिंग बट cos ऑफ 2026 थीटा, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना है तो माइनस साइन ऑफ 2026 थीटा फिर साइन ऑफ 2026 थीटा। अभी बताएंगे आपको इसका रीजन भी, cos ऑफ 2026 थीटा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू आपको कुछ दी गई है। दे गिव यू द वैल्यू ऑफ थीटा एज एन 2 पाई बाई 5, ठीक है। तो इफ आई विल गो हियर विद दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि ये जो 2026 है बेटा, इस 2026 को आप लिख सकते हो क्या 2025 प्लस 1? यस मैम हम लिख सकते हैं। एंड सिंस आई एम हैविंग हियर 2026 थीटा, ठीक है, एक काम करो इसको थीटा भी लिखो 2026 थीटा, तो 2025 प्लस 1 थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए, वी नो वेरी वेल थीटा यहाँ पे क्या है 2 पाई की फॉर्म में आ रहा है, तो 2025 प्लस 1 इंटू ये कितना बन रहा है 2 पाई बाई 5। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो कैन वी राइट डाउन इट हियर, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा तो एक काम करते हैं यहीं पे लिख लेते हैं। Here I can write down which is 2025 into 2 pi by 5 और प्लस यहाँ आ रहा है 2 pi by 5। अगर इसको ठीक से देखा जाए तो यही बन रहा है 2025, ठीक है, इंटू 2 pi by 5 और प्लस 2 pi by 5। दिस इज नथिंग बट ये क्या है मैम? ये तो 2n पाई ही तो है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2n पाई है और यहाँ आपके पास 2 pi by 5 है, ठीक है। व्हाट वी आर हैविंग हियर दिस इज नथिंग बट 2n, दिस इज नथिंग बट 2n पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये 2n पाई की मैम 2 पाई का फैक्टर के फॉर्म में बन रहा है 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 5। नाउ वी नो वेरी वेल जब भी आप cos में 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 5 निकालोगे और साइन में भी निकालोगे तो इट ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट 2 पाई बाई 5। सिमिलरली जब आप साइन में भी निकालोगे प्लस में 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 5, इट शुड गिव यू द रिजल्ट ऑलवेज सेम टू सेम, मतलब रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो दैट्स वाई जब हम यहाँ पे ये 2026 लिखते हैं ना बेटा, जब हम यहाँ 2026 थीटा लिख रहे हैं और थीटा की वैल्यू जब आप रखोगे, सो दिस 2026 थीटा अल्टीमेटली विल बिकम नथिंग बट योर cos थीटा। बात समझ में आई? ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा और ये बन जाएगा cos थीटा। और आई थिंक ऑप्शंस दिए थे, दे गिव यू द ऑप्शंस, हाँ दिया है ना, m की वैल्यू ये है तो और आंसर में भी क्या आएगा? ऑब्वियस m ही मिल रहा है मुझे। आई एम गेटिंग हियर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा ओनली, सो दिस वाज m ओनली। You can write down this is nothing but m only. तो we can say m power 2026 is equals to m. ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। उसने पूछा m इसकी वैल्यू बताओ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? m हो जाएगी। सॉरी आई एम हैविंग सीवियर कोल्ड एंड कफ, है ना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, m is a randomly chosen
क्या बोल रहा है, m is randomly chosen non empty subset where s equals to 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 2026 तक जा रहा है. Then the probability that the product of all the elements of m is even. आपको बताना है कि जब आप m निकालोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आए बेटा, even आए, और उन even एलिमेंट्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, what we need to find out, we need to find out here the probability when the product is even only. ठीक है, अब सबसे पहले एक बात समझते हैं हम कि टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 2 पावर 2026 है. जरा देख लो कितना है आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं. हियर वी कैन सी वी आर हैविंग द टोटल एलिमेंट हियर वी आर हैविंग टोटल एलिमेंट्स एज एन 2 पावर 2026 ही तो है. यस मैम, 1 2 3 एंड सो ऑन 2026 तक जा रहे हैं, तो टोटल एलिमेंट हमारे पास में 2 पावर 2026 है. इसमें से अगर आप हमसे बात करेंगे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, इसका आधा, 1013. वी कैन गो विद दिस वन. 1013 विल बी योर, क्या बन जाएगा बेटा, 1013 आपके पास बन जाएगा और नंबर. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है. अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, और मैं आपसे पूछूं टोटल नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स बताओ, तो वी कैन फाइंड आउट हियर द टोटल नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स. नॉन एम्प्टी में क्या बनेगा, 2 पावर 2026 और -1, ये हमारे लिए नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स बन जाएंगे. टोटल एलिमेंट्स 2 पावर 2026 है. ऑड नंबर्स ये रहे. अब मैं आपसे पूछूं कि एक काम करो, टोटल ऑड नंबर में या टोटल नॉन एम्प्टी ऑड नंबर्स बता दो, क्योंकि मुझे आई थिंक क्वेश्चन ने नॉन एम्प्टी की बात की, नॉन एम्प्टी ऑड नंबर. तो नॉन एम्प्टी ऑड नंबर में आ जाएगा मैम 2 पावर 1013 -1. ठीक है, नॉन एम्प्टी में -1 हो जाता है, दैट वी नो वेरी वेल. ठीक है, तो ऑड प्रोडक्ट ऑफ सबसेट तो आपके पास 2 पावर 1013 आ रहे थे, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या बेटा, कि बताओ, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बताओ कि इवन नंबर. ठीक है, तो वी नो वेरी वेल कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस, अगर मुझे आप इवन की बात कर रहे हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्रोडक्ट. ठीक है, तो दैट शुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, है ना. नॉन एम्प्टी ऑड नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया जाएगा. सो 1 माइनस नॉन एम्प्टी. ठीक है, हमारे पास कितने हैं मैम, ये रहे 2 पावर 1013 -1 डिवाइडेड बाय टोटल है 2 पावर 2026 -1. लेट्स सॉल्व इट. तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, फेवरेबल बाय टोटल लगाया है, 2 पावर 2026 -1 माइनस 2 पावर 1013 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2026 और -1 प्लस 1 गया. न्यूमरेटर में से 2 पावर 1013 कॉमन ले सकते हैं हम बेटा. क्या कर सकते हैं, वी कैन गो हियर विद 2 पावर 1013 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 पावर 1013 बन जाएगा. फिर माइनस या प्लस 1 में से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इट शुड बी -1 और डिवाइडेड बाय 2 पावर 2026 -1. अब एक बार देख लो क्या यही आ रहा है, और वी आर हैविंग द ऑप्शन सिमिलर टू दिस वन, तो वी कैन चेक. वी आर हैविंग ऑप्शन सिमिलर टू दिस वन, तो वी कैन चेक. ठीक है, देख लेते हैं. 2 पावर 1013, 2 पावर 1013 -1, 2 पावर 2026 -1. यस, हियर वी आर हैविंग द रिजल्ट. ठीक है, तो सिंपली वी कैन सॉल्व इट. बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए बात करते हैं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ऑफ आइगन वैल्यू. मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट किया इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, बट इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द आइगन वैल्यू. What it is talking about, for the given matrix M we are having a 3 cross 3 matrix जहाँ t की वैल्यू -π से π के बीच में है. y1 plus y2 plus y3 equals to 1 plus √2 where yi is the eigen value of M. तो बताओ t की वैल्यू क्या है. yi मतलब ये y1 y2 y3 भी आइगन वैल्यू है. ठीक है, yi का मतलब समझे, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो y1 y2 y3 आइगन वैल्यू हुए, 4 क्रॉस 4 की होगी तो y1 y2 y3 y4 आइगन वैल्यूज होंगी. ठीक है, चलिए, तो वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग हियर. जो मैट्रिक्स दी है किस फॉर्म में लिखी है, एम की फॉर्म में लिखी है. एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि मुझे बार बार वहां नहीं जाना पड़ेगा. 0 और cos t sin t, देन हियर वी आर हैविंग व्हाट, 0 sin t और cos t. ठीक है, नाउ बेटा हम अच्छे से जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि जब भी क्वेश्चन आपके पास आइगन वैल्यू का आए, ठीक है, यू शुड गो हियर विद ईदर द सम ऑफ आइगन वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू. तो सबसे पहले जाते हैं कहाँ पे, सम ऑफ आइगन वैल्यू पे.
When I will go here with sum of eigen value जो कि नथिंग बट ट्रेस होता है। ये ट्रेस वाला क्वेश्चन ना सुबह वाले में भी आया था, सुबह मतलब जो आज एक और पेपर था हमारा इसी का, उसमें भी आया था। ठीक है, तो 1+2 ऑफ कॉस टी आ गया, और ये आपको ट्रेस की वैल्यू दी है, ट्रेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज दिया 1+√t। तो नाउ आई कैन पुट हियर इट इज गिवन टू मी 1+√t, और हमारे हिसाब से आ रहा है 1+2 cos t। ठीक है, 1 से 1 गया, हियर आई कैन राइट डाउन cos t इक्वल्स टू √2/2, ठीक है, विच इज नथिंग बट cos t इक्वल्स टू 1/√2 मुझे आता दिख रहा है। ये वैल्यू आ रही है इसकी cos ऑफ t की वैल्यू। वी आर गेटिंग हियर द रिजल्ट cos t एज एन 1/√2। cos t 1/√2 मतलब समझे, cos की वैल्यू कहाँ होती है 1/√2, -π/4 और +π/4 पे तो होती है। तो here we can go with this one, we can start writing the value, it should be at π/4 और -π/4, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा t की वैल्यू क्या होगी, π/4 पे चलेगा, और आगे बढ़ोगे तो -π/4 पे भी चलेगा। माय आंसर शुड बी क्लियरली विजिबल कि वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई π/4 और -π/4। देखो ऑप्शन और लैंग्वेज में वेरिएशन आ सकता है, एज आई एम नॉट श्योर अबाउट द लैंग्वेज एंड द ऑप्शन, ठीक है, बट इफ द डेटा इज लाइक दिस, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, देन द सॉल्यूशन विल बी अकॉर्डिंगली आई एम सॉल्विंग हियर। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Let's come to the next question. Find the value of limit n tends to infinity when it is talking about k equals to 0 to infinity e power minus n power k upon k factorial। अब ना वैसे इस क्वेश्चन में भी दो अलग अलग चीजें हैं, पहले मैं जो क्वेश्चन लिखा है वैसे ही सॉल्व करके बता देती हूँ, देन आई विल टेल यू वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो लिखा है उसी को सॉल्व करें। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन में k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी है। एक काम करो, ये e पावर माइनस n को तो आप पहले ही बाहर ले लो, क्योंकि समेशन तो k पे लग रहा है ना, और ये बन जाएगा n पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। नाउ डू यू नो अबाउट दिस एक्सपांशन, क्या हम इस एक्सपांशन के बारे में जानते हैं? वी नो वेरी वेल मैम, दिस इज नथिंग बट अगर मैं e पावर x का एक्सपांशन करती हूँ तो ये 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलेगा, राइट। सो मैम दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ e पावर माइनस n ओनली। अब देखना बहुत आसान सा लग रहा है, e पावर माइनस n, मैम ये एक्सपांशन किसका है, e पावर प्लस n का है। e पावर माइनस n प्लस e पावर माइनस n और e पावर प्लस n गॉन, कैंसिल आउट होके कितना दे रहा है, 0, मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा इफ यू आर हैविंग k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट इफ यू आर हैविंग k इक्वल्स टू 0 टू 1, एक छोटी सी बात यहाँ समझे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन में अगर k की वैल्यू 0 टू क्या है बेटा, n है, और ये e पावर माइनस n, n पावर k और k फैक्टोरियल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही लिखा है n पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। तब ना ये वी नो वेरी वेल दिस इज नथिंग बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला किसका है, याद है, e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, ये होता है हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, सिंस व्हेन यू आर हैविंग हियर द वैल्यू एज एन n, ठीक है, और ये n जो है आपके पास बहुत लार्ज नंबर n जो है वो n is tending towards infinity, so n is your very large number। when your n is मतलब total number of outcomes बहुत ज्यादा large होते हैं, then your Poisson distribution will convert into the normal distribution। ठीक है, Poisson distribution हमारा normal distribution में convert हो जाता है। तो जब ये Poisson distribution normal में convert होगा, I hope you guys remember about this one, ठीक है, z equals to x minus mu by sigma, ये होता है हमारे लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला होता है। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, अगर ये क्वेश्चन मेरा जो कि अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ये रिजल्ट 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, और यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो इन दिस केस योर रिजल्ट शुड बी 1/2। ये जो वैल्यू आ रही है समेशन की वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कन्वर्ट इट ओके फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर ये पॉइसन, अगर ये क्वेश्चन में k इक्वल्स टू 0 टू n है, और अगर ये 0 से इन्फिनिटी है, तो आंसर हमारा 1 रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज। या वन मोर क्वेश्चन आई एम हैविंग हियर, लेट्स चेक इट आउट। इट इज टॉकिंग अबाउट गिवन द सबसेट S x1 x2 x3 ट्रांसपोज मतलब कॉलम फॉर्म में है, कॉलम वेक्टर है, बिलोंग्स टू R³ मतलब 3 डायमेंशनल है, ठीक है, सच दैट x ट्रांसपोज x बिलोंग्स टू 16, या x ट्रांसपोज x की वैल्यू 16 है। S2 बी द अनदर सेट, ये S1 है, आई थिंक S1 एक सेट है, दूसरा S2 विद अनदर सेट विच इज सब स्पेस ऑफ R³।
ठीक है, ऑफ डायमेंशन 2, ये डायमेंशन 2 का है। तो बताओ एरिया बिटवीन द S1 इंटरसेक्शन S2, आपको S1 इंटरसेक्शन S2 के बीच में क्या बताना है बेटा, एरिया की वैल्यू बतानी है ना। अब यहाँ से ना थोड़ा आराम से सुनना मेरी बात को, हाउ वी कैन गो विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा आराम से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, तो हियर वी कैन गो विद फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द यूनिट नॉर्म, या फिर जो लेंथ आ रहा है, लेंथ ऑफ द यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट कितना दे रहा है आपको, वैल्यू कितनी दी है, 16 दिया है ना। 16 मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्सटी, यही तो होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब 16, 16 मतलब यहाँ हो गया 4, तो नॉर्म जो आ रही है वो तो 4 आ रही है। Now just try to understand my point. Here we are having two figures. First जो sample space है उसमें x1 x2 x3 है, ये 3D फिगर बन रहा है, और 3D फिगर मतलब ये एक स्फेयर बन रहा है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये क्या बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है। इफ आई एम हैविंग हियर द स्फेयर आई कैन मेक इट, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बट आई एम नॉट श्योर कि आप समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा असम्पशंस पे चलना होगा। और यहाँ पे जो है एक अनदर फिगर है आपके पास जो कि 2D में है, डायमेंशन 2 में है। अगर आप उसको कट करते हो बाय एनी ऑफ द मीडियम, अगर आप उसको कट करते हो, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है। इफ आई एम हैविंग ए स्फेयर, थोड़ा सा अज्यूम करो कि अगर स्फेयर आपके पास है, फुटबॉल टाइप आपके पास है, अगर आप उसको बीच में से कट करते हो तो वो जो पोर्शन आपके पास है, इट विल कन्वर्ट नथिंग बट इट विल कन्वर्ट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कुलर शेप बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको जो बताना है ना एरिया, आपको वो इस सर्कल का एरिया बताना है जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। जो इंटरसेक्शन में बन रहा है, जब आप कट करते हैं तो जो फिगर बन रहा है वो सर्कुलर शेप है, आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। सो डिस्क या हम सर्कल कुछ भी बोल सकते हैं। we need to find out this one S1 intersection S2 which is nothing but the disk of radius r, ठीक है। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, आई कैन गो विद हियर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब 16 पाई। अब मुझे देखना है ऑप्शंस है कि नहीं है, नहीं ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है, वी कैन गो विद दिस वन 16 पाई। अगर ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, हो सकता है कि जो दिया होगा उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और नहीं है तो फिर आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर आपका आना चाहिए बेटा 16 पाई। अगर नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और आंसर शुड बी 16 पाई। बात समझ में आई, ठीक है। अब इट्स नॉट नेसेसरी मैम आपने तो ऐसा बनाया, ऐसा बनाने का मतलब जरूरी नहीं है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्म, है ना। ये किसी भी फॉर्म से कट हो सकता है, कहीं से भी आप इसको कट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वहां से आप कट कर सकते हो, जहां से भी कट करोगे वहां पे आपके पास सर्कुलर शेप बन जाएगा। दैट फॉर द सिंपल थिंग वी कैन अंडरस्टैंड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बेस थ्योरम का है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू गाइस रिमेंबर जब हमने यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस किया था तो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल डिस्कस किया था कि आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या कॉलेज से घर जा रहे हैं। जब आप कॉलेज से घर जा रहे हो तो आपको जो प्रोबेबिलिटी, आपकी मम्मी ने पूछा कि बताओ व्हाई यू रीच्ड लेट, ठीक है, एंड देन यू आर सेइंग कि आई रीच्ड लेट बिकॉज ऑफ बस, एक्टिवा या कार। तो आपकी मदर ने अगर आपसे पूछा कि बताओ यू रीच्ड लेट बिकॉज ऑफ बस, तो वही वाला कंडीशन आपको यहाँ बताना है। the base theorem is nothing but one specific case of the total probability। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसकी लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज की फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ। इट्स टॉकिंग अबाउट फॉर ए पर्सन P, ठीक है, when we are going, if the person P is having disease तो probability 0.3 है, person is not having disease तो probability 0.7। if he is having disease and then he will go for the testing, when he is going for the testing तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो probability 0.8 है, टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आए तो probability 0.2 है। सिमिलरली अगर उसको डिजीज नहीं है, if he is not having disease then if he will go for the testing और टेस्टिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो 0.1 है, टेस्टिंग का रिजल्ट नेगेटिव आए तो प्रोबेबिलिटी 0.9 है। मतलब सब कुछ आपको यहाँ दिया है। देन इट इज आस्किंग टू यू फॉर एनी गिवन पर्सन, इसी पी पर्सन की बात कर रहे हैं, इफ टेस्टिंग रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव आया है, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग डिजीज। मतलब टेस्टिंग रिजल्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, यू नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग डिजीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी शुड फाइंड आउट हियर द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी पॉजिटिव रिजल्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दिया। मैम देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, सबसे पहले बन रहा है कि अगर उसको डिजीज है और फिर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हियर वी कैन गो इफ ही इज हैविंग डिजीज एंड देन ही इज हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट, और ही इज नॉट हैविंग डिजीज
और देन ही इज हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट, दो में से ये एक की कंडीशन बनेगी ना। तो व्हेन ही इज हैविंग डिजीज तो मतलब 0.3 और ये 0.8, तो यू कैन गो विथ 0.3 इंटू 0.8, और यहाँ से कितना है, ये बन रहा है 0.7, और यहाँ पे ठीक है ये रहा नॉट डिजीज और पॉजिटिव आया 0.7 और 0.1। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं चाहो तो एज इट इज भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी समझाने वाले हैं आपको हम। ठीक है, नाउ अब मुझसे क्वेश्चन ने पूछा कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की पर्सन हैविंग डिजीज, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज हैविंग डिजीज, ठीक है। इफ ही इज हैविंग डिजीज मतलब समझे, अरे बाबा इसी का ये फेवरेबल केस बना, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है, सो प्रोबेबिलिटी ओके यूजिंग द बेस थ्योरम इज नथिंग बट फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल आपके पास है क्या, कि जब पर्सन को डिजीज है और वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ हो गया आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। बात समझ में आई? सिंपली वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। तो 0.3 मल्टीप्लाई विद 0.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.3 सॉरी मल्टीप्लाई विद 0.8 और प्लस 0.7 मल्टीप्लाई विद 0.1। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, डेसिमल डेसिमल हटा दो, आहा डेसिमल हटा दो, एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग तो रिजल्ट कितना आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं। वी आर गेटिंग हियर द रिजल्ट, कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 24, तो ऊपर आ रहा है, मतलब सारे डेसिमल में हटा ही देती हूँ, एक काम करते हैं डायरेक्ट ही हटा ही देते हैं, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 7 है ना, सही तो है, सही है। 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 7 मतलब 31, ठीक है। तो 24/31 लिख दो या तो आंसर, या फिर अगर डेसिमल में लिखना है बेटा तो इट कैन बी 0.77। तो 24/31 या फिर 0.77 में से जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, अगर ऑप्शंस थे तो, और एनईटी है तो अकॉर्डिंग टू द एनईटी यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन थे अभी हमारे पास। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।